Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel DU Scholars. So guys, we have covered till chapter 4 and chapter 6, broadly covering whole of unit 1 and one chapter of unit 2. Now unit 2 का second chapter, that is chapter 5, the levy and collection of GST will be covered in this video. I hope आपने सारी last videos देखी होंगी और आपको उसमें सब कुछ clear होगा. अगर कोई doubt है तो let me know in the comments. And let's start with today's topic, that is chapter 5, levy and collection of GST. So इस chapter में majorly हमने क्या क्या cover करना, that is section 9 and section 10 of our CGST Act 2017 and basic other छोटे छोटे जो concepts होंगे. Majorly इसका concept is this only. Section 9, that is charging section. Section 10 is composition scheme for goods and goods plus service, and composition scheme for services only. So these are the major topics. So पहले हम book से start करते हैं, then I'll move towards the notes. चैप्टर 5 एंड ऑल्सो इसके बाद ही सिंस RCM का चैप्टर इज़ रिलेटेड टू दिस चैप्टर ओनली, तो इसके बाद आई वुड बी पोस्टिंग पहले चैप्टर 14 दैट इज़ RCM, ताकि आपको समझ आ जाए इसका और उसका फ्लो ऑफ कॉन्सेप्ट, वरना रिपीटेशन हो जाएगा. ठीक है, तो इसके बाद आई विल बी पोस्टिंग पहले RCM. सो बुक में स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन में दे हैव गिवन दैट वी हैव अडॉप्टेड डुअल सिस्टम ऑफ इम्पोजिंग सेंटर एंड स्टेट. बता दिया CGST एंड SGST होता है, कैसे होता है, उसका रेट क्या होता है. Taxable event, the very first basis of charging of GST in any taxing statute is the taxable event. Taxable अगर event occur होएगा then only you can charge GST on that. It refers to the point on which the levy of tax is attracted, मतलब charging section जब applicable होता है. In fact, the taxable event is that event which on its occurrence creates and attracts the liability to pay tax. ये आपको बता दिया मैंने. द जेनेसिस ऑफ GST कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम आर्टिकल दिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम दिस. उसका मतलब बता दिया. एंड इट इज़, ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी. GST इज़ द एक्ट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. ये मैंने आपको कहा था, एज इट इज़ लर्न कर लेना. So consequently, GST can be levied on supply of all goods and services except for alcoholic liquor for human consumption. And it is clear that alcoholic liquor for human consumption is kept outside the purview of the GST by way of excluding the same from the definition itself, right? तो उसको पहले ही निकाल दिया है डेफिनेशन से, उस पर GST in any case लग ही नहीं सकता. ये कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन है. Commodities that are kept outside the purview of GST include दो categories, that is permanent exclusion and then the temporary exclusion. Once again, permanent exclusion में क्या आता है और temporary में क्या आता है, let's see. Permanent means commodity which is kept outside forever, मतलब उसको किसी भी केस में लग ही नहीं सकता. जैसे alcoholic liquor जो मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि उसके डेफिनेशन में ही लिखा है, एक ही चीज़ है. और ये मतलब जो परमानेंट एक्सक्लूजन में ये लिखा है, एज स्टेटेड इन दिस, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन comes in the category as the definition itself in the article has excluded it from such definition. Temporary में ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था जब हमने टैक्सेबल सप्लाईज वाला चैप्टर किया था, सप्लाई अंडर GST आई थिंक वो था या उससे पहले वाला था. तो उसमें वी हैव टॉक्ड अबाउट टैक्सेबल सप्लाई एंड दिस 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट दैट आर केप्ट आउटसाइड द purview of GST that include petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, natural gas and aviation turbine fuel. ये और एरोप्लेन्स में जो फ्यूल यूज़ होता है ना, वो होता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल. The above exclusion has been incorporated in CGST Act, IGST Act and UTGST Act, multiple state tax as well. 9(2) can be reproduced as these follow. उसने डेफिनेशन की फॉर्म में बता दिया. टर्म्स क्या है, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूटी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, IGST लगता है जिस पे बता दिया. हाउ टू डिसाइड द टाइप ऑफ विच इज़ टू बी लेवाइड, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कौन सा कब लगेगा टैक्स. ये कैसे डिसाइड होता है, डिसाइड्स ऑन इंटर एंड इंट्रा स्टेट बेसिस. इंटर एंड इंट्रा. इंटर स्टेट मतलब विद इन 2 states, and intra means within 1 state, within same state.
इंटर इज़ जैसे पंजाब एंड हरियाणा में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, इंट्रा मीन्स विद इन पंजाब हो रही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर इंटर होएगा तो इस पर CGST लगेगा, सॉरी इंटर होएगा तो IGST लगेगा, और विद इन होएगा तो CGST एंड SGST लगेगा। और यहीं अगर दिल्ली आ गया या पुडुचेरी आ गया, कुछ भी ऐसी UT आ गई ही, तो वहाँ पे UT GST लग जाता है। दिल्ली नहीं आता बिकॉज ये लेजिस्लेटर होता है। चंडीगढ़ आ गया, दमन एंड दीव आ गया, वैसे UT GST लग जाएगा वहाँ पे। इंटर स्टेट सप्लाई टू डिफरेंट स्टेट, टू UTs एंड स्टेट एंड UT, ठीक है। बेसिस ऑफ चार्ज इंटर स्टेट सप्लाई IGST लगता है। इसका रेट कैन नॉट एक्सीड 40%। अभी एट प्रेजेंट द हाईएस्ट रेट इज़ 28%। इसके काफ़ी रेट होते हैं जो प्रिस्क्राइब्ड है। 5% पे होता है GST, 12% पे होता है, 18% पे होता है, 28% पे होता है, अलग अलग टैक्स ब्रैकेट्स होते हैं। तो वैसे ही तो एज़ पर रूल, एज़ पर एक्ट उन्होंने बोला है कि 40% से ज़्यादा कभी भी IGST नहीं जा सकता। तो 40% तक गवर्नमेंट को छूट दी गई है, बट अभी तक मैक्सिमम रेट इज़ 28% ओनली। फॉर पर्पज ऑफ चार्जिंग GST, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई शेल बी कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 15। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगा, ये नेक्स्ट ही चैप्टर आएगा। लेट मी सी इफ इट इज़ देयर। वैल्यू ऑफ सप्लाई is 8 and 9. 8 is value of supply, 9 is value of supply. So ये हम कर लेंगे कवर, कोई बात नहीं। कहाँ गया? अरे हाँ, वैल्यू ऑफ सप्लाई के आएगा कि कौन सी वैल्यू पे टैक्स लगना चाहिए, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। उसके बाद IGST इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन लिकर, ये तो बता दिया। GST इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एज वेल। टाइप ऑफ GST शेल बी IGST। इंट्रा मैंने आपको बता दिया कि CGST एंड SGST लगता है। एक्सेप्शंस एज पर प्रोविजो 181 ऑफ IGST एक्ट, द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स शेल नॉट बी ट्रीटेड एज इंट्रा स्टेट सप्लाई, दैट इज सप्लाई टू गुड्स और सर्विस टू अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट। ये बात हमने करी थी रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में भी, जिसमें मैंने आपको बताया था ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, यहाँ पर 2 स्टेट हैं। ये अगर एक इसमें से SEZ है और दूसरी नॉर्मल हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी वाली स्टेट है जिस पे टैक्स लगना चाहिए, तो जो इनके हेडक्वार्टर हैं, और फॉर एग्जांपल ये रिलायंस इंडस्ट्री का एग्जांपल है। रिलायंस इंडस्ट्री का एक यूनिट यहाँ पे है, एक यूनिट यहाँ पर है, और ये वाला SEZ के अंडर फॉल करता है फॉर एग्जांपल। तो इसका वैसे रूल होता है कि अगर सेम ही स्टेट में है तो आप एक रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, बट क्योंकि ये एक SEZ है तो इसके लिए स्पेशल रूल्स होंगे। तो ये इसके लिए कंपल्सरीली एक ये दो यूनिट के लिए कंपल्सरीली डिफरेंट सेपरेट रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आया, वो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन वाले उसमें भी बताया था, है ना। तो वैसे ही इसको इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं बोला जाएगा, ये एक्सेप्शन आ जाता है। देन गुड्स इम्पोर्टेड इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया टिल दे क्रॉस द कस्टम्स फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया और सप्लाईज मेड बाय टूरिस्ट रेफर टू इन सेक्शन 15। सेक्शन 15 जब पढ़ेंगे तो बताऊंगी। टाइप ऑफ टैक्स शेल बी CGST एंड SGST और UT GST। द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेट्स द डुअल GST। कौन सा टेबल है? हाँ, ये एग्जांपल्स दिए, आप पढ़ लेना, मैंने आपको समझा दिया। ये इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन में भी उन्होंने सिर्फ रेट के हिसाब से बता देती हूँ। Manisha supplier pays GST under regular scheme and is not eligible for any threshold exemption. He has made following outward supply मतलब sales in the tax period: intrastate supply of 8 lakh and interstate supply of 3 lakh. इस पे क्या लगेगा? CGST and SGST, और इस पे लगेगा IGST. If the given amount is exclusive of tax of this and this, 9% each, ये 18%.
रिस्पेक्टिवली कंप्यूट जीएसटी पेबल बाय मनीष ऑन इट आउटवर्ड सप्लाई। तो कैसे आएगा देखो, इंटरस्टेट सप्लाई का पहले उसने बता दिया कि सीजीएसटी एसटीएसटी कैसे लगेगा, ये कैलकुलेट कर दिया यही वाले अमाउंट पे, और इंटरस्टेट 3 लाख पे 18% लगेगा, ये कर दिया, तो इसकी लाइबिलिटी आ जाएगी बस। और यही अगर आपको फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको इसके साथ साथ आईजीएसटी की बताया जाएगा कि जैसे इधर मनीष है तो मनीष के पास इतना आईजीएसटी का आईजीएसटी बोल रही हूँ, आईटीसी का बैलेंस दिया हुआ है, तो आईटीसी इतना पड़ा है, और तब उसकी लाइबिलिटी क्या बनेगी, इतनी उसकी टोटल लाइबिलिटी है, इसमें से आईटीसी वो क्लेम कर सकता है, तो जो बाकी बची जो कैश में पेमेंट करेगी वो लाइबिलिटी बनेगी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे सिर्फ, तो बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। तो ये वाला आप क्वेश्चन एक बार खुद करके देख लेना, ये इसका आंसर है। उसके बाद जीएसटी ऑन एक्सपोर्ट, ये मैंने आपको बताया था नील रेटेड सप्लाई होता है। 2.5 of IGST export of goods with this grammatical variation and cognate expression means taking goods out from the India, ठीक है। In case of goods, supplies are located in India, place of supply is outside India, the supply of goods shall be deemed to be supply of goods in course of interstate trade or commerce, interstate supply मानी जाएगी। It is important to note that the movement of goods alone relevant and not the location of exporter or importer, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर एक्सपोर्ट्स के केस में ये नहीं देखा जाएगा कि टीओएस क्या है, पीओएस क्या है। पीओएस प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा सिर्फ गुड्स का अगर एक्सपोर्ट हो रही हो तो, और उसको डायरेक्ट इंटरस्टेट सप्लाई के कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अगर सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रही हो देन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन इज रिक्वायर्ड to qualify export of service like nature of currency by which payment is required to be made, location of exporter, etc. Export of goods is not required to fulfillment of any condition. अगर गुड्स के केस होएगा तो ये ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, बट सिर्फ सर्विसेज के केस में वी हैव टू सी कि कौन सी करेंसी में पेमेंट रिसीव हो रही है, और बाकी जो कंडीशन है दैट एक्सपोर्टर की लोकेशन क्या है वहाँ पर देखते हैं हम पीओएस, बट अदरवाइज गुड्स के केस में नहीं देखते। इट इज़ जीरो डेटेड सप्लाई, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया दैट जीरो डेटेड सप्लाई मीन्स क्या होता है, you can claim ITC but you need not pay GST on that. Under GST regime the export is treated as zero rated supply, accordingly which no tax would be payable on such supply. The exporter will be eligible to claim corresponding ITC. यही बात बताई मैंने, मतलब ITC यू कैन टेक, मतलब आपको GST पे तो करना पड़ेगा, बट GST आप GST आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप ITC ले सकते हो, ठीक है, पे नहीं करना। द एक्सपोर्टर में यूटिलाइज सच क्रेडिट फॉर डिस्चार्जिंग ऑल अदर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटीज़ और मे क्लेम रिफंड ऑफ दीज टैक्सेस, उसके ऊपर है ये, ठीक है, जो उसके ऊपर जो उसका चॉइस हो ही कैन डू दैट, या तो ITC ले ले दूसरे उसके ऊपर, या फिर रिफंड ले सकता है, उसका अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। इलस्ट्रेशन इसके ऊपर दे दी। उसके बाद आ गया इम्पोर्ट, इसके ऊपर ना आपको शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं बिकॉज ये प्रोविजंस ना बहुत उस तरीके से लिखे हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, सो यू मस्ट रीड दिस, इम्पॉर्टेंट कि एक्सपोर्ट के ऊपर GST का क्या प्रोविजंस है एंड इम्पोर्ट के ऊपर GST के क्या प्रोविजंस है, तो इसको याद कर लेना। सो जनरल प्रोविजन क्या कहते हैं, दैट 269A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन कोर्स ऑफ इम्पोर्ट टू टेरिटरी शेल बी डीम टू बी इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, ये मैंने आपको बताया पहले, एक्सपोर्ट में भी ये भी इंटरस्टेट ट्रेड होता है, विदाउट एनीथिंग सीइंग कि किसकी लोकेशन कहाँ पर है। इम्पोर्ट इज़ इंटरस्टेट। मैकेनिज्म ऑफ लेवाई, द लेवाई ऑफ IGST इज़ देयर एंड BCD इज़ ऑल्सो देयर, बेसिक कस्टम ड्यूटी भी लगता है इस पर। अंडर IGST द इम्पोर्टर ऑफ सर्विस विल हैव टू पे टैक्स ऑन RCM बेसिस, क्योंकि इम्पोर्ट करने हैं तो आपका जो सप्लायर है वो आपका आउट ऑफ इंडिया है, और उसको अगर सप्लायर को अपना GST पेमेंट करना पड़ेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस होगा, इसलिए उन्होंने सीधा बोला है कि जो इंपोर्ट कर रहा है हमारा जो रेसिपिएंट है जो ऑलरेडी इंडिया में है वही RCM के बेसिस पे टैक्स पे करेगा, IGST पे करेगा, ठीक है। हाउएवर इन रिस्पेक्ट ऑफ इम्पोर्ट ऑफ OIRDR बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन नॉन टैक्सेबल रेसिपिएंट्स द सप्लायर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट। सिर्फ इसकी एक्सेप्शन OIRDR सर्विसेज की है कि वहाँ पर ही सप्लायर दे सकता है, वो RCM में कवर नहीं है। उसके बाद IGST इम्पोर्ट शेल बी लिवाइड अंडर कस्टम्स, मैंने आपको बताया BCD बोलते हैं कस्टम्स वालों को, एंड वेटेड विद द कस्टम्स टैरिफ एक्ट, ठीक है। रिलेटेड टू लेवाई ऑफ सर्विस इन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स मीन ब्रिंगिंग गुड इनटू, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई शेल बी
लोकेशन ऑफ द इम्पोर्टर, जहाँ पर उसको रिसीव हो रहे हैं, दैट शेल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. IGST ऑफ इम्पोर्ट in addition to GST, compensation cess may also be levied on certain luxury and demerit goods under GST. Integrate tax on goods and shall be addition to the applicable basic custom duty which is leviable under custom tariff act. यही मैं आपको यहाँ पर बता रही थी. ठीक है. इन ITC का केस क्या? ITC ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट शैल बी अवेलेबल टू द इम्पोर्टर एंड एट द सेम टाइम यूटिलाइज बाय हिम फॉर ITC और पेमेंट ऑफ सच टैक्सेज ऑफ आउटवर्ड सप्लाई. मतलब जो RCM इसने लिया पेमेंट किया होगा अंडर RCM, तो वो उसका ITC भी ले सकता है, यही बोल रहे हैं वो. ठीक है, ये भी हो गया. उसके बाद आ गया चार्जिंग सेक्शन, हमारा सेक्शन नंबर 9. The charging section is a must in any taxation statute of levy and collection. Before imposing any tax, it must show that transaction falls within the ambit of taxable event and that person on whom the tax is imposed also get covered within the scope and ambit of charging section. मतलब applicability दोनों को होनी चाहिए. The subject of provision of section 2 मतलब 9(2) 9(1) की बात हो रही है. एक्सेप्शन टू प्रोविजन टू 9(2) उसकी रेफरेंस दिया. देयर शैल बी लेवाइड अ टैक्स कॉल्ड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन इंट्रास्टेट, मतलब CGST होनी चाहिए, एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ alcoholic liquor on the value determined under section 15 at any such area not exceeding 20% as may be notified under the government recommendation of council and collected in such a manner as may be prescribed and shall be paid by the taxable person. ठीक है. 9(1) इज टैक्सेबल पर्सन इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर FCM, मतलब ये FCM की बात हो रही है कि फॉरवर्ड चार्जिंग मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग टैक्सेबल पर्सन हैज़ टू पे GST ऑन एनी सप्लाईज. ठीक है. 9(2) टॉक्स अबाउट जॉन से पे जो हमने अभी टेम्प्रेरी एक्सक्लूजन की बात करी, दैट 5 petroleum products do not fall under the purview of GST. वही इन्होंने लिखा है that central tax on supply of petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, natural gas and aviation turbine fuel shall be levied with effect from date as may be notified by government. यहाँ पर लिखा है एज मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, मतलब अभी तक इन्होंने गवर्नमेंट ने डेट अनाउंस नहीं करी है, दैट्स वाई दे आर एक्सक्लूडेड. उनको स्पेशली बोला है कि वो वहाँ पर नहीं लगेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, अगर जब डेट दे देंगे तो वो लग जाएगा. नो CGST shall be levied on alcoholic liquor. ठीक है. प्रोवाइडेड ऑल इंटरस्टेट सप्लाई shall be liable to CGST done. The levy is on supply of goods or service or both except on supply of liquor. ठीक है. 5 petroleum product, यही रिपीट हो रहा है. Section also provides that value shall be paid as per section 15 and the maximum rate of CGST shall be maximum 20%. The manner of collection, ये CGST की बात हो रही है, मतलब सेंट्रल टैक्स की, IGST की बात नहीं हो रही. CGST जब हमने ऊपर बोला ना 40%, आप कंफ्यूज मत करना, वो 40% कहाँ बोला मैंने अभी, यहाँ पर 40% का आया था ना कि मैक्सिमम शुड बी 40%, ये रहा. IGST कैन नॉट एक्सीड 40%, मतलब CGST और SGST की दोनों की लिमिट इज़ 20% ओनली, क्योंकि CGST एंड SGST इकट्ठा लगता है 50% बोथ ऑफ IGST. तो ये अगर मैक्सिमम 20% है, दोनों अगर मैक्सिमम जाएंगे भी तभी IGST शैल बी मैक्सिमम एट रेट ऑफ 40%. ऐसे बन रहा है ये, इनका आपस में कनेक्शन ऐसे है. ठीक है. तब इन्होंने यहाँ पे बोला 20%. द मैनर ऑफ कलेक्शन शैल बी बाय गवर्नमेंट एंड द पर्सन लाइबल टू शैल बी द टैक्सेबल पर्सन. ठीक है. उसके बाद 9(2) ये हो गया. यहाँ पर लिस्ट बनाते जाते. 9(1) इज़ हमारा टैक्सेबल पर्सन इज़ लाइबल टू पे टैक्स अंडर GST. देन 9(2) इज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट and our 9(3) and 9(4) are RCM services that I'll be covering in my next video. इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, RCM का कॉन्सेप्ट 2-3 बार बता दिया वीडियो में, पिछली में. 9(5) हमारे बिल्डर्स का RCM होता है, ये अभी इतना डिटेल्ड में इसमें कवर्ड नहीं है, तो जस्ट आपको यही रिमाइंड रखना है कि बिल्डर के केस में एक स्पेशल RCM होता है, बस इतना ही काफ़ी है. एंड 9(4) है ये, 9(3) नहीं है यहाँ पे, 9(4). 9(3), 9(4), 9(5) इज़ आर इको की सर्विसेज, इको पे RCM. ठीक है. ये ऐसे चलेगा फ्लो. ठीक है. तो अभी हम देखते हैं
9394 यहाँ पर लिखा ही होगा. कॉन्सेप्ट ऑफ RCM हैज़ बीन डिस्कस सेपरेटली इन चैप्टर 13 एंड सूटेबल न्यूमेरिकल इज देयर. ठीक है, ये तब देखेंगे. 95 पे आ जाओ. इको की सर्विसेज. इको का क्या कॉन्सेप्ट होता है? इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. ठीक है, इको का कॉन्सेप्ट इज़ बेसिकली जैसे ओला और ऊबर का कॉन्सेप्ट होता है. एक सप्लायर होता है, एक यहाँ पर हमारी ऊबर आ गई और ये हमारा हो गया कस्टमर. ये है सप्लायर. सप्लायर मतलब जो एक तरह से डिलीवरी बोल रही हूँ, जो कार्स वगैरह प्रोवाइड करता है टू द ऊबर एंड जो ड्राइवर्स होते हैं उसके, दैट आर द सप्लायर्स. ऊबर उनको एक बीच में इंटरमीडिएरी सर्विस प्रोवाइड करता है ताकि उनके जो सप्लाईज हैं, सारी जो डिलीवरी सर्विसेज हैं वो कस्टमर तक पहुंच सके. तो कायदे से तो FCM के हिसाब से देखा जाए तो ट्रांजैक्शन इज़ बिटवीन सप्लायर एंड द रेसिपिएंट ओनली, मतलब कस्टमर एंड द सप्लायर ओनली. तो ये वाले पर्सन को कायदे से टैक्स देना चाहिए. बट 95 कहता है कि क्योंकि कस्टमर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता इससे सप्लायर से, और ऊबर का मेजर रोल हो जाता है एक तरह से, क्योंकि ड्राइवर्स भी एक तरह से इसके पास हैं और कस्टमर का सारा कांटेक्ट भी एक तरह से ये डीम्ड सप्लायर के तौर पे काम करता है ना. तो इसलिए ऊबर को लाइबिलिटी शिफ्ट आउट कर दी गई है फ्रॉम सप्लायर टू पे टैक्स अंडर GST एज पर सेक्शन 95. ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है इको का. यहाँ पर ये दिया हुआ है RCM, तो मैंने आपको बता दिया. एक बार यहाँ से देखना तो देख लो. FCM में जनरली सप्लायर इज़ लाइबल टू पे टैक्स अंडर GST एनी रजिस्टर्ड सप्लायर. नो GST शैल बी लेवाइड ऑन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्लस अल्कोहलिक लिकर फॉर कंजम्पशन. एंड देन RCM में रेसिपिएंट विल पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. 93 में गुड्स एंड सर्विसेज में है एंड 94 में बिल्डर्स का कॉन्सेप्ट है. 95 टॉक्स अबाउट इको. आ जाओ इको में. सो समटाइम्स इको इज़ लाइबल टू पे टैक्स अंडर GST इन केस ऑफ सम नोटिफाइड सर्विसेज ओनली. हर केस में नहीं होता, सिर्फ नोटिफाइड सर्विसेज के केस होता है. जैसे फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, जिसका मैंने आपको भी यहाँ पे एग्जांपल दिया. एनी ओला ऊबर का जो कैब ड्राइवर होता है, एक तरह से ओला इको है जो डीम्ड सप्लायर के तौर पे काम करेगी, जो मैंने आपको भी यहाँ पे समझाया. कैब ड्राइवर एक्चुअल सप्लायर है, कस्टमर इज द रेसिपिएंट. तो इको विल बी लाइबल टू पे टैक्स अंडर GST. होटल अकोमोडेशन के केस में भी ऐसे होता है, बस इसमें केस होता है कि या तो होटल रजिस्टर्ड हो तो वो पे करेगा, अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो RCM में कवर भी हो जाता है ये. तो ये अलग केस है. कैसे, मैं समझाती हूँ एक सेकेंड. जैसे MMT के थ्रू व्हेन यू बुक होटल, सप्लायर इज होटल, अपना इंटरमीडिएरी इज आर MMT या Airbnb, कोई भी ले लो, और हमारा सप्लाई कस्टमर आ गया यहाँ पर रेसिपिएंट. ठीक है, तो कायदे से देखा जाए तो होटल और कस्टमर के बीच में हो रहा है, बट इसमें केस आ जाता है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड का. जब तो रजिस्टर्ड होएगा होटल तो ये खुद ही टैक्स पे करेगा, तो ये 95 में कवर नहीं होता. बट अगर ये अनरजिस्टर्ड है देन MMT मतलब जो इंटरमीडिएरी है वो इसके बिहाफ पर टैक्स पे करेगी, तो ये 95 में कवर हो जाता है. और एक तरह से ये लाइबिलिटी पे आउट करती है होटल की. ठीक है, यही इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया. तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट ऑफ होटल इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि किसकी लाइबिलिटी बन रही है. हाउस कीपिंग सर्विसेज में भी ऐसा ही होता है, अर्बन कंपनी एंड ऑल, जहाँ पर इफ़ सप्लायर इज़ द रजिस्टर्ड, मतलब अगर आप किसी से AC सर्विस की सर्विसिंग की वो ले रहे हो सर्विसेज, तो जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड है, तो देन दैट सप्लायर विल पे GST अंडर FCM. FCM इज़ 91 ओनली, जो नॉर्मल केस है ये वाला. रजिस्टर्ड सप्लायर इज़ रिक्वायर्ड टू पे GST. तो FCM इज़ 91, मतलब ये 91 में कवर होंगे. इफ़ दैट पर्सन इज़ नॉट रजिस्टर्ड देन इट विल गेट कवर अंडर 95 एंड दैट टू अंडर RCM. ठीक है,
एक और है ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर में एक पॉइंट है ओमनी बसेस का, ये न्यू एडिशन हुआ है। ओमनी बसेस अगर सप्लायर का उनका कंपनी है, कोई कंपनी ओमनी बस सप्लाई कर रही है to give these transportation services to the passengers, then the company will pay GST as per 9(1) and no RCM will be there. But if that supplier is someone other than the company, then it will get covered under 9(5) and RCM will be there, and that eco will pay that, मतलब intermediary will pay tax under GST. अदर केसेस में वैसे नॉर्मल ही है जो चलता है। एक और चीज़ है इसमें रेस्टोरेंट सर्विसेज। रेस्टोरेंट सर्विसेज मतलब जो हमारे रेस्टोरेंट ऑपरेट करते हैं थ्रू स्विगी एंड जोमेटोज एंड बाकी आजकल जेप्टो कैफ़े एंड ये सब कुछ भी हो गया। सो एनी रेस्टोरेंट और एनी ईटिंग जॉइंट लोकेटेड इन द स्पेसिफाइड लोकेशन, दैट स्पेसिफाइड लोकेशन इज मीन्स की providing hotel accommodation services having declared tariff of any unit of accommodation above 7500 per day, almost सारे ही cover हो जाते हैं, then they are not covered under 9(5) and the actual supplier will pay GST under section 9(1). But otherwise all the restaurant that are registered with the Swiggy and Zomato and all get covered under 9(5) and that eco will pay GST as per RCM provisions। ठीक है, यही बात यहाँ पर भी बोली है। इको नीड टू कलेक्ट TST, ये TCS का भी बीच में कॉन्सेप्ट आ गया है बट इट्स ओके। इफ इको आउटवर्ड सप्लाई इज टू बी शोन इन GST 3B, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी इनवर्ड सेल, ये सेल परचेज का कॉन्सेप्ट है। लिमिट इतना आपको बस याद रखना, ठीक है। ये RCM का कवर हो गया। लेट्स सी बुक में आगे क्या है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। 9(5) में इन्होंने यही बोला है, पहले तो इको का मतलब बता दिया, इको का मैकेनिज्म कैसे वर्कआउट करता है, थर्ड पार्टी कैसे इन्वॉल्व होते हैं ये बता दिया। इको कवर्स सर्विसेज ओनली, ये बात याद रखना, सर्विसेज की ही बात हो रही है यहाँ पे, गुड्स नहीं है, सर्विसेज ही है। द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन इको इज एक्सेप्शन फॉर इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, एक एक्सेप्शन का काम करता है। एक्सेप्शन कार्व्ड आउट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स एंड विल नॉट एप्लीकेबल टू सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स। कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज नोटिफाइड कौन सी हैं? सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बता दिया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय ओमनीबस, ओमनीबस वाला कॉन्सेप्ट भी बता दिया। वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस इज इको इज अ कंपनी ओनली, बाकी सारे अगर एक कंपनी के अलावा कोई और करेगा देन इट इज़ कवर्ड अंडर नॉर्मल 9(5) में, ठीक है। सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन इन होटल्स इन इन्स, MMT वाला वो है। एक्सेप्ट वे पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू इको इज़ लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर रजिस्टर्ड होगा देन वो खुद ही पे करेगा, वहाँ पे इको का नहीं आएगा। सर्विसेज ऑफ हाउस कीपिंग सच एज प्लम्बिंग, कारपेंटिंग और एनी सर्विस द पर्सन सप्लाइंग सर्विस थ्रू इको इज़ लायबल फॉर GST, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन सर्विस सप्लाइड थ्रू रेस्टोरेंट इट इज लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रेमिसेस, स्पेसिफाइड प्रेमिसेस का मतलब आपको मैंने बता दिया, ये रहा स्पेसिफाइड प्रेमिसेस का मतलब। प्रोवाइडिंग होटल अकोमोडेशन सर्विसेज हैविंग डिक्लेयर्ड टैरिफ ऑफ एनी यूनिट ऑफ अकोमोडेशन अबव 7500 पर यूनिट पर डे, बस ये याद रख लेना आप कैसा भी, ठीक है। उसके बाद थोड़ी ये है मीनिंग्स। person liable to pay GST, eco is located in taxable territory, then eco will pay. If it does not have a physical presence, then person representing the eco will pay. If eco has neither physical presence or no representative, then person liable to pay, person पे टैक्स इन पर्सन अपॉइंटेड बाय इको फॉर एनी पर्पस। एक तरह से इको ही पे करेगा, ये वही बोल रहा है, बस उसके अलग अलग मतलब निकाल दिए। हु शेल बी लाइबल टू पे टैक्स अंडर GST, सप्लायर, रेसिपिएंट और इको कब कब होएंगे। इन नॉर्मल कोर्स तो 9(1) के हिसाब से सप्लायर होता है, 9(3), 9(4) में रेसिपिएंट होता है RCM में, और 9(5) में इको होता है, यही बोला। जन GST के रेट मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम इज़ 40%, बाकी 2020 में उन्होंने कैसे डिवाइड किया। ये सारे रेट्स हैं 0.25 से लेके 3, 5, 12, 18, 28 जो मैंने आपको ऊपर बताया। अब ये याद नहीं रखना, मैक्सिमम टाइम्स ना क्वेश्चन में गिवन होते हैं कि जैसे हमने ऊपर जो एक इलस्ट्रेशन करी उसमें गिवन था कि आपका 99% का CGST आएगा और आपका बाकी 18% का IGST आएगा, तो ये गिवन होता है क्वेश्चन में, आपको याद नहीं रखना ये। उसके बाद इज़ टैक्सेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई, ये मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था 8A एंड 8B का। कॉम्पोजिट सप्लाई जो नेचुरली बंडल्ड होती है, तो इसमें रेट
एट रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई इज़ देयर, जो एप्लीकेबल होगा। मिक्स सप्लाईज जो है नेचुरली बंडल नहीं होती हैं और उसको जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेल के लिए मिक्स सप्लाई करी जाती है। तो इसमें हाईएस्ट रेट ऑफ सब्सटेंस जो उसमें होएगा, हाईएस्ट रेट शैल बी एप्लीकेबल। अगर जो मैंने आपको बास्केट वाला एग्जांपल दिया था उसमें अगर एक चीज़ 5% पे एप्लीकेबल है, एक 12 की है, एक 28 की है या 18 की है, तो 28 विल बी एप्लीकेबल ऑन होल फ्रूट बास्केट या कोई भी हैम्पर यू आर कंसिडरिंग, तो हाईएस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल, ऐसे। ठीक है, ये इन्होंने मीनिंग बता दिया। एक इलस्ट्रेशन है दोनों की, बता दिया। मिक्स सप्लाई की ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सप्लाईज मेड बाय टैक्सेबल पर्सन दैट कंप्राइजेज ऑफ 4 टैक्सेबल सप्लाईज, द इंडिविजुअल रेट GST आर गिवन। गुड सर्विस इतना इतना गिवन है। इफ़ द वैल्यू ऑफ पैकेज इज 8000, value of package, you are required to determine applicable rate and total GST payable in each case. It's a composite supply and item A is a principal supply. Principal supply का रेट लग जाएगा composite supply में, मतलब 5% पे जाएगा ये। It is a composite supply and item B is a principal supply, फिर भी principal का लगेगा। item B मतलब 12% पे लग जाएगा। composite supply item C is principal supply, composite supply है तो principal is 28%। देन आइटम डी इज़ प्रिंसिपल तो 18%। इट इज़ अ मिक्स सप्लाई तो 28% लग जाएगा क्योंकि इस पर हाईएस्ट परसेंट लगेगा। देखो यही लिया 5, 12, 28, 18, 28, ये कैलकुलेट कर दिया इनकी कहाँ पे दिया हुआ है, कितने ये 8000 है ना, 8000 पे ये रेट कैलकुलेट करके GST की अमाउंट निकाल दी, बस ऐसे होता है। ये सारा इजी होते हैं ये, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा ना तो आप इजीली कर लोगे। इसमें भी ऐसे ही किया है तो आप देख सकते हो। ठीक है, देन कॉम्पोजिशन स्कीम आ गई। कॉम्पोजिशन स्कीम होती क्या है, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आता ही आता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉम्पोजिशन स्कीम वो होती है, एक तरह से ये छोटे टैक्स पेयर्स के लिए एक रिलीफ का काम करती है। रिलीफ इन द सेंस, कॉम्पोजिशन स्कीम एक छोटे टैक्स पेयर को अपने कंप्लायंस एंड ऑल से और कैलकुलेशन वगैरह से एक बेनिफिट एडवांटेज प्रोवाइड करती है कि अगर आपको ऐसे एक एक चीज़ के ऊपर अलग अलग GST पेमेंट करके अपना स्पेशली इतना खर्चा नहीं बढ़ाना, तो आप डायरेक्ट आपका जो टोटल टर्नओवर आ रहा है या टोटल आपका टैक्सेबल टर्नओवर आ रहा है उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज का टैक्स पेमेंट करो और आगे बढ़ो। उन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम में ऐसे बोला, बट इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक तरह से कंडीशंस हैं, उस कंडीशन अगर आप पूरी कर रहे होगे तभी आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर में एलिजिबल होते हो। अब कौन कौन सी सर्विसेज हैं या कौन कौन सी कंडीशंस हैं। कंडीशन सबसे पहले तो गुड्स की अगर हम बात करें, जो 10(1) एंड 10(1) या 10(2) में आते हैं। 10(1) मतलब गुड्स एंड गुड्स प्लस सर्विसेज की जो कंडीशन है, दो है कंपोजिशन स्कीम। एक तो ये है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज आती है। गुड्स मतलब जो सिंपल गुड्स है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या ट्रेडिंग हो रही है। गुड्स एंड सर्विसेज मतलब इसमें एक ही आती है होटल की, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होते हैं। एक अदर दूसरी कंपोजिशन स्कीम है जो 10(2)(a) है, जो ओनली सर्विसेज के लिए है। ठीक है, तो ये ऐसे 3 कंपोजिशन स्कीम है। इन दोनों की ऑलमोस्ट सारी कंडीशन सेम है, बहुत ज़्यादा कॉमन कंडीशंस है, बट सिर्फ इनकी जो लिमिट्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट है। इसमें लिमिट है ऑफ 1.5 CR का अगर आपका ATO हो, और 75 lakhs का ATO होना चाहिए इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल एंड आई थिंक उत्तराखंड या असम, सॉरी। ये 3 स्टेट के अलावा बाकी सारी जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उसमें 75 लाख है। मतलब ये जो 3 स्टेट है इन पे 1.5 करोड़ का क्राइटेरिया एप्लीकेबल होता है, एक तरह से ये रख लो। और इसमें सब सेम है, इसमें स्पेशल कैटेगरी नहीं है, इसमें सिर्फ 50 लाख का कैटेगरी वो है। इसमें ऑल स्टेट के ऊपर 50 लाख का ATO एप्लीकेबल है। तो ये डिफरेंस है, और बाकी जो कंडीशन है वो मैं अभी कवर करती हूँ क्या क्या है। तो पहले तो यहाँ तक देख लेते हैं कि इफ़ अ सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर GST इज रिक्वायर्ड टू पे अंडर GST रेट, फर्दर शैल अडहेयर टू द प्रोसीजर एंड कंप्लायंस।
Now, in the case of small taxpayer, a high rate of GST as well as huge procedural requirements create hassles. मतलब उनको दिक्कत हो रही थी. Which threats the registered person from provisions diligently in order to bring simplicity and reduce the compliance cost of small taxpayer. A simplified scheme has been introduced under Section 10 called compositions levy or a composition scheme. एक पहली बात तो ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है कि अगर आपका 1.5 करोड़ तक है और आप इसमें फॉल आउट करो तो आपको लेनी ही लेनी है. नो, इट्स योर चॉइस. अगर आपको लेनी है तो लो, वरना आप अगर नॉर्मल के हिसाब से देना चाहते हो टैक्स वैसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है. ऑप्शनल स्कीम है पहली बात तो. एंड इज एलिजिबल पर्सन हु हैज़ ऑप्टेड स्कीम कैन पे GST एट प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज एंड और टर्नओवर ऑफ एवरी क्वार्टर इंस्टेड ऑफ पेइंग एट नॉर्मल रेट. ठीक है, उसका रेट क्या है, अलग अलग रेट हैं. अगर इफ़ यू आर ट्रेडर तो आपका 1% ऑन टैक्सेबल टर्नओवर. अगर मैन्युफैक्चरर हो, सॉरी, इफ़ यू आर अ मैन्युफैक्चरर तो 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर है. अदरवाइज इट्स 1% ऑफ टोटल टर्नओवर. देयर इज समथिंग आई थिंक आई एम मिसिंग आउट, 1 सेकेंड. या नहीं, ठीक है, 1% ऑफ टोटल टर्नओवर यही है. एंड देन होटल्स की बात आ जाती है, या होटल्स या रेस्टोरेंट की. रेस्टोरेंट ही रखो, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे. कीप रेस्टोरेंट्स ओनली. यहाँ पर भी आई रोट होटल, इट्स रेस्टोरेंट ओनली. ठीक है, इस पे दे हैव 5% ऑफ टोटल. तो लेट्स सी. Section 10(1) has been amended for in a manner to view any remove interpretational ambiguity and stipulate the composition taxpayer shall pay tax at a percentage of their turnover instead of tax payable on the invoice value of transaction under 9(1). So it is important to note that registered person has opted composition levy is not permitted to collect GST. वो GST कलेक्ट नहीं कर सकता. अ कॉम्पोजिशन स्कीम कैन नॉट अवेल बेनिफिट ऑफ ITC नहीं ले सकता. अगर आपको ITC लेना है तो आप नॉर्मली टैक्स पे करो, देन यू डोंट कम अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम. अंडर कॉम्पोजिशन अ क्वार्टरली रिपोर्ट सिस्टम इज, मतलब QRMP स्कीम इज देयर. मैंने आपको समझाई थी, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट की स्कीम इन रजिस्ट्रेशन चैप्टर इज अपलोडेड इन GST-4 और ऑन बिहाफ ऑफ 18th डे ऑफ सक्सीडिंग क्वार्टर. तो ये 3 मेजर कंडीशंस हैं इफ़ यू वांट टू कंसिडर कमिंग इन कॉम्पोजिशन स्कीम. तो उसमें आपको ITC नहीं मिलेगा किसी भी उस पर. आप GST कलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब आप टैक्स इनवॉइस भी मतलब इशू नहीं कर सकते. टैक्स इनवॉइस आपको इशू करना पड़ता है इफ़ यू वांट टू कलेक्ट GST. टैक्स पर तो फिर आप बिल को कौन सा दोगे आप, अगर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते. देन यू गिव बिल ऑफ सप्लाई. बिल ऑफ सप्लाई आप दोगे कि आपने सप्लाई में पेमेंट रिसीव करी है, जो भी किया है, बट आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते. और आपको GSTR-4 में आप अपना रिटर्न फाइल करना होगा ऑन 18th डे. मतलब ये 18th डे इनकी डेडलाइन है. डेडलाइन वाली जो डेबिट क्रेडिट आई थिंक रिटर्न्स का चैप्टर है उसमें विल सी सबकी अलग अलग डेडलाइंस होती हैं कब आपको देना है. तो ऐसे आपका ये मेन कंडीशंस हैं जो आपको फॉलो अपने कॉम्पोजिशन स्कीम वालों को फॉलो करनी पड़ती हैं. और भी कंडीशंस हैं, ये तो मैंने थोड़ी सी बताई हैं अभी. अदर कंडीशंस ये रही आपके पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. टर्नओवर लिमिट इज़ कोई भी स्टेट में हो तो आप 1.5 CR ऑफ ATO का मतलब भी आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था. एंड अदर असम, हिमाचल प्रदेश, आई थिंक यहाँ पर जम्मू भी है, इन्होंने लिखा नहीं, यहाँ पे जम्मू भी है, वो 75 lakhs में आते हैं. देन ATO कैसे कैलकुलेट होता है ये बता दिया. ATO की डेफिनेशन है सेम पैन एक्सक्लूजन्स. कॉम्पोजिशन डीलर में सप्लाई सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड लिमिट. ठीक है. Restaurant services which given in clause B of schedule 2 are to not to be included to reckon this criterion के लिए अलग बना है. Not eligible to avail 10(2) कौन कॉम्पोजिशन में नहीं आ सकते. पहली बात तो इफ़ दे आर एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये गुड्स की है, मैंने आपको पहले ही बताया कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स. क्लॉज B ऑफ पैराग्राफ वो 10(1) वाली गुड्स की है, 10(2) वाली सर्विसेज की, 10(2)A वाली सर्विसेज की है. 10(1) and
2 are for goods and goods plus services. Engaged in making supply goods or services that are not liable to tax, जो purview में नहीं आ रही है. Engaged in making interstate supply of outward supply, interstate outward supply बना रहा है. Then making supply of goods through eco, who is required to collect tax under section 52. TCS कलेक्ट करता है. देन CTP एंड NRTP. देन रूल 5 आ गया. ये मैं आपको रूल 5 और इस बात में बताती हूँ. पहले ना ये यहाँ से मैंने लिस्ट बनाई है पूरी कंडीशंस की, जो इसमें कवर अच्छे से नहीं करी हुई, बता देती हूँ. पहले तो ATO वाली क्राइटेरिया है कि 1.5 CR ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर यू हैव टू चेक फॉर अवेलिंग कॉम्पोजिशन स्कीम इन दिस करंट फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का ATO चेक करना है. 75 lakhs in some special category state, that is except जम्मू कश्मीर, हिमाचल एंड असम. मतलब इन तीनों में लगेगी 1.5 CR की लिमिट. कंडीशन एक तो ये ऑप्शनल है, टैक्स इनवॉइस आप इशू नहीं कर सकते. CTP NRTP ये कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते. टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब GST कलेक्ट नहीं कर सकते. ITC यू कांट क्लेम, यू हैव टू इशू बिल ऑफ सप्लाई एंड यू कैन सेल गुड्स थ्रू इको. पहले इट वॉज नॉट देयर. पहले ये आई थिंक बुक में भी ये अपडेटेड नहीं है, ये अभी वो आई है. यहाँ पर इन्होंने लिखा होगा कि इको वाला, इको यू कैन टेक अवेल थ्रू इको नाउ. आई हैव रेड समवेयर यहीं पर. लिव इट, ढूंढ लेना कहाँ पर मैंने मार्क किया था. बट अभी यू कैन सेल गुड्स थ्रू इको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. इंटरस्टेट में इनवर्ड सप्लाई परचेज आप कर सकते हो, बट इनवर्ड आउटवर्ड सेल नहीं कर सकते. मतलब इंटरस्टेट सेल यू कांट डू. रेसिपिएंट ऑफ कॉम्पोजिशन सप्लाई इज नॉट allowed to take the ITC, and you can supply services only, restaurant services, that too under a marginalized rate, that is 10% of total turnover in last financial year in state, or 5 lakh, whichever is higher tak you can supply services alongside your goods. ठीक है. You can't manufacture notified goods like आइसक्रीम, aerated water, tobacco, bricks, fossil bricks. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कौन कौन से notified goods हैं. बट यू कैन बी अ ट्रेडर ऑफ दिस गुड्स. आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, बट यू कैन ट्रेड. मतलब सेल यू कैन डू, परचेज एंड सेल यू कैन डू, बट यू कैन मैन्युफैक्चर दैम. अब ये मार्जिनलाइज वाला कॉन्सेप्ट इज़ देयर इन योर बुक एज, यहाँ पर अभी जो बुक में टेबल बना था ये. कॉम्पोजिशन डीलर में सप्लाई सर्विस सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड लिमिट. ठीक है, कौन कौन सी आप एक स्पेसिफाइड लिमिट तक सर्विसेज दे सकते हो. इंसर्टेड एज पर दिस प्रोविजन द पर्सन हु ऑप्ट्स फॉर टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम मे सप्लाई सर्विसेज of value not exceeding 10% of their turnover in state or union territory of preceding year, or 5 lakh whichever is higher. maximum मतलब minimum of 5 lakh तो आप सर्विस दे सकते हो. एक तरह से ये है. It means restaurant services which is given in 6B of schedule 2 are not to be reckoned in this category. not reckoned. restaurant services नहीं आएंगी. For the purpose of second provision, the value of exempt service provided by way of extending deposit, loan, advances so far is as consideration is representative by way of interest or discount shall not be taken as account of the remaining value of turnover is not included. मतलब एक तरह से. ठीक है. Then person not eligible की लिस्ट मैंने आपको बता दी. कंडीशन रूल 5 की देख लेते हैं. ही इज़ नीदर CTP NRTP बता दिया आपको. गुड्स हेल्ड इन स्टॉक बाय हिम शुड नॉट बी परचेज इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट सेल और इंटरस्टेट मतलब ये परचेज हो सकती है, सेल नहीं हो सकती है. ये जो मैंने पॉइंट आपको यहाँ दिया है कि आप इनवर्ड सप्लाई यू कैन डू, आउटवर्ड सप्लाई यू कांट डू. देन उसके बाद गुड्स हेल्ड इन मस्ट हैव नॉट बीन परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर वेयर परचेज द टैक्स हैव टू बी पेड अंडर RCM. He shall pay tax under 9394 on inward supply of goods or services. Then he is not engaged in manufacture of goods as notified. notified goods नहीं करना चाहिए. ये सारे notified goods की सारी लिस्ट है. He shall mention the words composition tax player on the board. अपनी जो bill of supply वो बनाएगा, और जो आपका जो बार
शॉप पे बोर्ड लगता है उसके ऊपर यू हैव टू मेंशन कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज. ही शैल मेंशन द वर्ड कॉम्पोजिशन टैक्स पे पर्सन ऑन एवरी नोटिस एवरी साइन बोर्ड डिस्प्लेड ऑन द प्रोमिनेंट प्लेस. ये आपको बता दिया. कॉम्पोजिशन हैव्स टू बी ऑप्टेड फॉर ऑल यूनिट्स विद सेम पैन. ये पैन बेसिस होती है. अगर आपने एक यूनिट के लिए यू हैव ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन तो आपका वो पैन पे जितने यूनिट्स आर रजिस्टर्ड वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सब कॉम्पोजिशन के अंदर आ जाएंगे. The registered person shall not be eligible to opt for a composition scheme unless all such registered person opt to pay tax under subsection. ठीक है. देन इंटीमेशन आपको देनी पड़ती है. आपको बताना पड़ता है दैट आई एम ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर रूल 3 एंड रूल 4 ऑफ CGST रूल्स 2017. डिस्कशन मस्ट बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. दैट पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन. तो जो ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं दैट इज दे आर अनरजिस्टर्ड person are applying for registration. Any person who is not registered and may have option to pay under taxes under composition levy. Part B of registration form में they have to mention the same shall be considered as intimation to pay tax under composition levy. Such intimation shall be considered only after the grant of registration के बाद ही you can do that. And applicant to the applicant and his option to pay tax and composition levy shall be effective from the date from which registration is effective. जब उसको registration मिलेगा और वो उसने अपना उसमें registration में के part B में he has mentioned कि मेरे को composition में टैक्स पे करना है तो जब उसको आरसी उसकी मिलेगी उससे उस डेट से ही कैन पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवाई. देन जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है टैक्स उसमें वो अगर कॉम्पोजिशन में शिफ्ट होना चाहे उसकी इंटीमेशन कैसे करेगा. एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 शेल इलेक्ट्रॉनिकली फाइल एन इंटीमेशन इन फॉर्म GST CMP 02. GST CMP 02 उसको फाइल करना पड़ेगा. डूली साइंड एंड वेरीफाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड ऑन कॉमन पोर्टल either directly or through facilitation center notified by commissioner prior to commencement of financial year के शुरू होने से पहले you have to file this form and get it verified electronically on the common portal. तभी you can pay the tax under composition in the next coming year. ठीक है. which is option to pay tax on a foresight exercise. ठीक है. He shall also furnish statement of GST ITC 03. ये भी करना पड़ेगा क्योंकि पहले वो ITC क्लेम कर रहा होगा बट इस साल से he won't be claiming any ITC. तो वो ITC वाला फॉर्म भी he have to fill ताकि उनको भी इंटीमेशन मिल जाए कि आप कॉम्पोजिशन में जा रहे हो तो you won't be claiming any ITC. ठीक है. With a period of within period of 60 days from commencement of relevant financial मतलब 60 दिन पहले. Any intimation in respect of any place of business or state shall be deemed to be intimation supply of service through same PAN. Option to pay shall be effective from date of beginning of financial year. ठीक है. No fresh declaration every year. मतलब अगर एक आपने फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पर आपने इंटीमेट कर दिया कि मैं आगे से कॉम्पोजिशन में दे रहा हूँ तो ये एक तरह से ऑटोमेटिकली ओवर द पीरियड लग गया जब तक आप उसको विड्रॉ नहीं करते. ये नहीं है कि आप एक साल आपका ख़त्म हो गया तो अगली बार आप फिर जाके उसको बता रहे हो कि मैंने इस साल भी कॉम्पोजिशन. ऐसा नहीं है. एक बार आपने दे दिया तो इट्स फाइन जब तक आप उसको रिवोक नहीं करते या आपकी मतलब एक तरह से ATO क्रॉस नहीं होता तब तक यू कैन पे अंडर कॉम्पोजिशन विदाउट एनी इंटीमेशन. एक बार दे दिया तो. देन रजिस्टर्ड पर्सन बता दिया आपको. इलस्ट्रेशन है यू कैन रीड. देन रूल 7 आ गया. टैक्सेबल ऑप्टिंग फॉर फिक्स्ड परसेंटेज है. आपको भी परसेंटेज बता दी 1% वाली वही रेट है. मैन्युफैक्चरर के लिए 1% है. मैं टोटल बता रही थी. CGST हाफ हो जाता है. फूड और एनी अदर ह्यूमन कंजम्पशन और इंडायरेक्ट मतलब रेस्टोरेंट्स के लिए 5% है. ट्रेडर्स के लिए 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर है. ये देखो टैक्सेबल टर्नओवर और ये टोटल है स्टेट यूनियन टेरिटरी का टोटल टर्नओवर. ये टोटल है. ये भी टोटल है. ये टैक्सेबल है. अब टैक्सेबल इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन है यहीं पे मैं बताती हूँ आगे. ये मैन्युफैक्चरर्स ऑफ नोटिफाइड गुड्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल टर्नओवर. रेस्टोरेंट सप्लायर परसेंटेज ऑफ टोटल टर्नओवर. GST रेट. अच्छा ये वही है. ये रहा. टैक्सेबल टर्नओवर का कैसे होएगा वो बताने के लिए एक एग्जांपल. ABC लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर्स. this 28% GST rate is applicable on this and company manufacture agricultural implements also.
विच आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। हमें पता है एग्रीकल्चर सर्विस, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, और उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी एग्जाम्प्ट होते हैं। देन द फॉलोइंग टर्नओवर इज देयर फ्रॉम अप्रैल टू जून। वैल्यू ऑफ सप्लाई दे रखी है, रेट दे रखे हैं। The company fulfill all the condition to be required to adopt the composition levy and calculate taxable turnover in composition scheme if company is a manufacturer of this product and if it's a trader। अगर तो मैन्युफैक्चरर है तो 1% ऑफ टोटल लगेगा। ऑफ टोटल मतलब 48 लाख। 48 लाख का 1% लग जाएगा 48,000। 48 लाख में या 48,000 लग जाएगा। अगर तो ही इज़ अ ट्रेडर तो 1% ऑफ टैक्सेबल मतलब 1% ऑफ 48 माइनस 9 इज़ 39। 39 लाख पे 1% लग जाए 39,000 की उसकी लाइबिलिटी आ जाएगी। तो ऐसे बनेगा, ठीक है। देख लो इधर, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज़ 9, इतना इतना, टोटल सप्लाई 48 लाख। इफ़ ही इज़ अ मैन्युफैक्चरर तो ये मैंने IGST निकाला है, ठीक है। 0.5 पर 24 लग जाएगा। इफ़ ही इज़ अ ट्रेडर देन 39 लाख पे 5.5% लग जाएगा। मतलब मैंने इसको टोटल करके बताया, आपने ये 48,000 आ जाएगा, ये आ जाएगा 39,000। तो ऐसे चलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और ये आगे वाली इलस्ट्रेशंस इज़ ऑल्सो देयर। ओके फाइन, ये देख लेना। वैलिडिटी Rule 6, the following points noteworthy regarding the validity of composition levy. Let's see. When conditions are satisfied, no fresh declaration, इकट्ठा करके बताया एक तरीके से। Turnover exceeds the limit, then intimation of withdrawal देनी पड़ती है, नॉर्मल टैक्सेशन की तरह देना पड़ता है, और ITC वाले को भी बताना पड़ता है कि अब आगे से मैं ITC लूँगा। तो एक तरह से ये दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि इंटीमेशन और विड्रॉल के टाइम एक तो GST वालों को बताना है, एक ITC वालों को अलग से फॉर्म दोनों को भरने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों में चेंजेस आ रहे हैं, राइट। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन में जब आप फॉर्म GST REG 01 जब आपको RC मिल जाएगी तब। इफ़ रजिस्टर्ड पर्सन ऑलरेडी है तो GST CMP 03 और 02 और अपना ITC वाला जो भी है फॉर्म वो वाला भरना पड़ता है। देन ऑल्टरनेटिव कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विस प्रोवाइडर, ये 10(2)A वाली स्कीम है, सेम है, बिल्कुल सेम है, बस इसकी लिमिट चेंज है। बेनिफिट ऑफ स्कीम कैन बी बाय एलिजिबल रजिस्टर्ड पर्सन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्कीम ऑपरेट म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली मतलब इफ समवन इज ऑप्टिंग 10(1) और 10(2) तो ही कांट ऑप्ट फॉर 10(2)A। मतलब या तो टैक्सेबल पर्सन ये ऑप्ट कर सकता है या ये ऑप्ट कर सकता है, दोनों नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चर द गुड्स एंड सर्विस रेस्टोरेंट प्रोवाइड हु आर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर 10(1) इवन नॉट ऑप्टेड कैन नॉट अवेल दिस। अगर आप ऑप्ट नहीं भी कर रहे हो बट आप एलिजिबल हो रहे हो उस चीज़ के लिए तो भी 10(2)A एप्लीकेबल आपके ऊपर नहीं हो सकती। टर्नओवर लिमिट इज़ 50 लाख, जो मैंने आपको पहले बता दी। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल लिमिट इज नॉट एक्सीड, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखना है, करंट का नहीं देखना। द रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंडिंग टू ऑप्ट फॉर स्कीम शुड नॉट हैव ATO ऑफ मोर देन 50 लाख। सारी स्टेट में, इसमें स्टेट की वो डिफरेंस है ही नहीं। लैप्स ऑफ ऑल्टरनेटिव स्कीम, इफ द ऑप्शन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन टू अवेल कॉम्पोजिशन शेल लैप्स विद इफेक्ट फ्रॉम दिस इफ द टर्नओवर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट। ऑफ कोर्स यही चीज़ को एक्सप्लेन किया है इस पे। हाँ, इसका रेट इज़ 6%, जैसे उस पर 1%, 5% था ना, इस पे ओवरऑल रेट इज़ 6%। अगर आपको 10(2)A लेना है तो आपका जो ATO होगा उसका एट द रेट ऑफ 6% करके जो टैक्स आएगा वही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ऐसे चलता है, ठीक है। 3%, 6% ऑफ टर्नओवर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टोटल करके अप टू 50 लाख। इनएलिजिबल पर्सन कौन से हैं, जो उधर इनएलिजिबल थे, सेम वही है। CTP, NRTP, ई-कॉमर्स ऑपरेटर, अभी ये पॉइंट नहीं आएगा, ये कर सकते हैं। आई थिंक इसमें भी है, ये लो लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, रीड कर लेना, सेम ही है। इलस्ट्रेशन आ गया। देन एयरपोर्ट ड्यूज़, ये देख लेते हैं एक पॉइंट। एयरपोर्ट ड्यूज़ मतलब जब हम एयरपोर्ट की टिकट लेते हैं दे चार्ज अस दीज 2 ड्यूज, PSF एंड UDF।
PSF इज़ पैसेंजर सर्विस फ़ी, UDF इज़ यूज़र डेवलपमेंट फीस। जस्ट उनकी उसके अगेंस्ट में दे डोंट प्रोवाइड एनी सर्विस और एनीथिंग, बट एक तरह से फंड इकट्ठा करते हैं फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट और समथिंग लाइक दैट, है ना। तो दे आर एलिजिबल टू कलेक्ट दैट बाय देयर एक्ट, जो उनका रूल्स ये है एयरक्राफ्ट रूल 1937, उसके अंडर दे आर एलिजिबल टू कलेक्ट दैट। बट सिंस वो नहीं उसके अगेंस्ट कोई सर्विस दे रहे हैं टू इंडिविजुअल पैसेंजर, देन उसके ऊपर GST कैसे लगेगा ये उसके बारे में है। So the airport operator, that is the authority managing the whole airport, charges airport levies, namely PSF and UDF, under Rule 88 and under Rule 89 of these rules. The airport licensee may collect PSF from embarking passenger of such rate as specified. According to rule, the airport license shall utilize said fee only for infrastructure and facilitation of the passenger, individually नहीं overall level पे. These licensee may collect on major airport UDF at such rate prescribed, ठीक है। The following important point are there: who levies airport operators, who collects, the airlines who are under the airport operators collect these from the passengers, and liability क्या बनती है। Since the PSF and UDF are charged by airport operator for providing services to passengers, these service provided by operators to passenger against consideration in form of this are liable for GST। GST उस पर लगना चाहिए। Who is responsible to pay? एक तरह से if airlines are collecting, then airlines should be liable to pay, but since यहाँ पर बोला है कि airlines is operated by airport operator, then on the overall level the operator is liable to pay GST over these two charges, ठीक है। ये इन्होंने बोला, इतना छोटू सा ये कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए। एंड विद दिस आवर चैप्टर इज़ ओवर, एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड डू प्रैक्टिस दिस इलस्ट्रेशन, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। जो थ्योरी क्वेश्चंस होंगे दैट बहुत कम इन GST, केस स्टडी बेस्ड आ सकते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो इलस्ट्रेशंस है यू शुड कवर दैट, क्योंकि ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना उसी के ऊपर है, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में उतना पार्ट ही कराया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। तो ये पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, डोंट थिंक कि ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कम है, या जो भी है, इट इज़ कम्प्लीटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड, एंड यू कैन 100% rely on this to cover up your GST का syllabus. I hope I am clear with that, and if you understood the concepts, do like the video, comment down below if you have any doubts, and subscribe to the channel so that you don't miss out on any video. And that's it. Share with your friends also. Thank you so much.